Hello everyone, welcome to the YouTube channel Botany for All. In our today's video, we will discuss about the another modern trend in the taxonomy. In our previous videos, we have discussed certain modern branches like use of the cell biology or the study of the cell biology in taxonomy, as well as the use of biochemicals or the study of biochemical in taxonomy, which was called chemotaxonomy and cytotaxonomy. So another modern trend is taxometrics, also called the phonetics, numerical taxonomy, or taximetrics. So it is also a modern trend in taxonomy because with the evolution of time, with the evolution of biology, the taxonomy got also advanced because nowadays the technology is more advanced, as well as there are many tools available now which can help in the easy identification as well as classification of the living organisms. जैसे जैसे मॉडर्न हुआ है टाइम भी, टेक्नोलॉजी भी, सिमिलरली जो आइडेंटिफिकेशन या क्लासिफिकेशन के मेथड्स हैं दे आर आल्सो एडवांस्ड. सो वन ऑफ द मेथड्स अमंग देम आर द टैक्सोमेट्रिक्स. सो इट इज द अनदर मॉडर्न ट्रेंड. इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ the taximetrics or the numerical taxonomy. It involves the use of simple mathematics, the statics, the numerical analysis, use of computer tools, etc. So taximetrics is that particular branch which involves the use of simple mathematics, statics, as well as the numerical analysis or the use of computers in taxonomy. And taxonomy means that art which involves the identification, naming, classification, and all that. Identification, naming, classifying the organisms, etc. So simply, it is the application of simple mathematics principles or the taxonomic in the taxonomic studies that is called the taximetrics. Mainly, it is based upon the simple mathematics or the numerical analysis. Means number of characters are chosen. Means it is not restricted or limited like the other classification system. For example, if I talk about the phylogenetic system of classification, that is only based upon the phylogeny. Okay, if I talk about the natural system of classification, that may be based upon the 2 or 3 limiting factors. But in the case of taximetrics, the classification is based upon the number of characters that are chosen, and there be more and more characters should be chosen. Maximum or more and more the numbers of characters will be, better will be the classification system. Better will be classification. So such classification which is based upon the numerical analysis or number of characters, that classification system is called phonetic classification system or phonetics. So it gives a broad knowledge. It is based upon more and more characters that can be chosen randomly. That's why it is a better classification system as compared to natural classification system. And it is a modern classification system as compared to natural. Although natural was also a modern trend, natural was started after the study of cell biology, molecular biology, genetics, and another modern tools. But in case of the natural classification system, only 2 or 3 characters were chosen. Suppose we are classifying different organisms. Suppose this is one organism, this is the another, 1 and 2. We have only chosen the chromosome number. And depending upon the chromosome number, we have classified these organisms in the different classes. Suppose one having 10 chromosome number, this is having 20. So they will be separated and they will be placed in the separate class based upon the natural classification system. Natural was advanced how? Because it was choosing a deep characters. It was not based on only the morphological character. केवल morphological पर base नहीं है natural classification system, इसलिए ये तो modern है, but उससे भी better है phonetic classification system, क्योंकि phonetic में character तो natural वाले ही choose किए जाते हैं, genetics choose की जाती है, mol bio, cell bio, anatomy, physiology and modern other tools, but maximum characters लिए जाते हैं, maximum characters की listing की जाती है. ऑल्दो बहुत से कैरेक्टर ओवरलैप करेंगे, बट फिर भी डिस्क्रिमिनेशन के थ्रू, ठीक है, किसी एक कैरेक्टर को बेटर मानकर थोड़ा सा भेदभाव करके उसी के बेसिस पर क्लासिफिकेशन कर दिया जाता है फिनेटिक में. तो मैक्सिमम कैरेक्टर्स लिए जाते हैं, मोर एंड मोर, और जितने ज्यादा कैरेक्टर होते हैं, मोर द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स,
more better is classification. ऐसा मानना था एक साइंटिस्ट का, एडेनोसोनियन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है बेस दिया था टैक्सीमेट्रिक्स का या न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का. So generally, in a simple definition, it involves the use of simple mathematics or the numerical analysis. Numerical analysis means maximum number of characters are listed. Use of the computer to plot the result. मान लीजिए जितने भी कैरेक्टर लिए गए हैं मैक्सिमम कैरेक्टर्स, उनके बीच में सिमिलैरिटीज और एफिनिटीज को प्लॉट किया जाता है स्टैटिक्स के बेसिस पर, किसी ग्राफ या डायग्राम के बेसिस पर, या कंप्यूटराइज, बिकॉज दिस इज द era of technology or era of internet. So those characters can be computerized or can be fed in a internet system, and there we can manage the classification system. So the use of modern tools like computer, like mathematics, is called taximetrics or the numerical taxonomy. So we will further proceed in the detail now. These are the basics about the taximetrics. So the idea of taximetrics, that is the use of mathematics in taxonomy. मैथमेटिक्स को भी यूज किया जा सकता है टैक्सोनॉमी में. दिस आइडिया वाज गिवन बाय अ साइंटिस्ट एडेंसन ड्यूरिंग द 18th century, during 1763. The idea of taximetrics was given by the Edenson. So they were considered as the father of taximetrics because the idea was given by the Edenson, but a lot of contribution was given by two scientists, which are the Smith and Sokal. The idea was advanced by two scientists, Smith and Sokal, in 1963. So all of the rules, all of the techniques, all of the procedures that were given in the taximetrics or we follow in the taximetrics are mainly given by Smith and Sokal. That's why there is a classification system, which is phonetic classification system. What are the different criteria or what are the type of different classification system that I have discussed in the fundamental components? You can watch there. We will also discuss these classification system in the upcoming time whenever we will discuss the classification separately. So phonetic classification system, phonetic means which is based upon the taximetrics. So it was given by the Smith and Sokal. So this classification system is based upon some principles which are called Neo-Edenson, Neo-Andersonian principles of taximetrics. So there is a particular set of principles which should be followed in the classification system, which is based upon the taximetrics. So these principles are mainly given by the Edensonian as well as and advanced by the Smith and Sokal. So it was a quick overview about the history. The idea was given by the Edenson, and their principles are called the Neo-Edensonian principles of the taximetrics, which are advanced by the Smith and Sokal. And there is a separate classification system also by the Smith and Sokal. These days, a branch of biology, that is bioinformatics, which is an advanced branch and mainly deals with the internet and computers, the use of internet and computers and databases in the biology. So this particular branch, bioinformatics, the information technology in biology. Okay. So the taximetrics is now the part of this system, the bioinformatics, because it is a more collective term, including various databases for the protein, genetic nucleic acids like DNA and RNA. And of course, it also have a branch that is taximetrics, which is for the taxonomy. So it is a bigger term, it is a collective term, the bioinformatics, of which the taximetrics now or the numerical taxonomy nowadays is the part of bioinformatics. So while classifying the organisms on the basis of numerical taxonomy or the phonetics, what is the procedure? So firstly, an operational taxonomic unit is selected. So selection of basic unit. See, we have already discussed the classification system or the arrangement in the classification system is called taxa. A taxa include various taxons like species, like genus, like family. So all of these are taxons, and collectively the arrangement is called taxa. So for the arrangement of taxa, one unit is selected. That unit should be very basic. You can select family if there is no information available about the genus or species. If there is information available about each and every species of an genus,
So species would be selected as the basic unit. So एक basic unit select की जाती है, that should be the lowest unit about which the characters are available or about which the information is available. So individuals are the basic unit, maybe a species, maybe a genus, or maybe a higher rank taxa. So that basic rank or that lowest rank whose characters are studied, जिस पर काम किया जाता है, जिसके कैरेक्टर्स चूज किए जाते हैं, दैट बेसिक यूनिट इज कॉल्ड OTU, the operational taxonomic unit. So firstly, OTU is being selected, and then the maximum listing of the characters or the listing of maximum possible characters about that OTU. जो भी आपने सेलेक्ट किया, मान लीजिए आपने OTU फैमिली सेलेक्ट किया है, तो उस फैमिली के मैक्सिमम पॉसिबल कैरेक्टर जो हम बता सकते हैं उनको लिख दिया जाएगा, ठीक है, उनका न्यूमेरिकल एनालिसिस किया जाएगा. फॉर एग्जांपल किसी एक फैमिली के लिए 10 कैरेक्टर अवेलेबल है, दूसरी फैमिली के लिए 8 कैरेक्टर अवेलेबल है, तो दैट द वन फैमिली, द फर्स्ट फैमिली वुड बी बेटर इन द न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी. जिसके मैक्सिमम पॉसिबल कैरेक्टर मिलते हैं, दैट इज बेटर. So firstly, the selection of basic unit is done, then the characters are selected. More and more, while choosing the characters, we would see that there should be more and more characters about that particular OTU, of that OTU. These characters may be qualitative, okay, as well as quantitative. Both type of characters, qualitative as well as quantitative, should be chosen so that we can choose maximum possible characters. Equal weightage should be given. Equal weightage should be given to the characters. See, unlike other classification system, मान लीजिए phylogenetic classification system हम डिस्कस करते हैं, वहां पर केवल एक phylogyny को वेटेज दिया जाता है, ओके. आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में केवल मॉर्फोलॉजी को ही वेटेज दिया जाता है. नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में जहां हम मॉडर्न या जो मॉडर्न ब्रांचेज है, जैसे सेल बायोलॉजी, जैसे एनाटॉमी, उनमें भी किसी पर्टिकुलर एक दो को ही हम क्या देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं. मान लीजिए हमने किसी स्पीसीज को क्लासिफाई कर दिया क्रोमोसोम नंबर के बेस पर, तो वहां हमने एक ही कैरेक्टर को वेटेज दे दिया, क्या कि क्रोमोसोम नंबर. बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ इक्वल वेटेज दिया जाता है टैक्सीमेट्रिक्स में. तो ये एक अच्छी बात है. दिस इज द एडवांटेज ऑफ टैक्सीमेट्रिक्स. नेक्स्ट थिंग, फिर इनके बीच में मैच कराए जाते हैं जो कैरेक्टर्स जो भी आ गए, ठीक है, उनके बीच में डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर्स, सिमिलैरिटीज बिटवीन कैरेक्टर्स एंड एफिनिटीज बिटवीन कैरेक्टर्स. कैसे एक दूसरे एफिनिटी, क्या लिंक है, क्या सिमिलैरिटीज है, एग्जैक्टली कैसे सिमिलर है. मान लीजिए दो फैमिली सेलेक्ट करी है, मैंने OTU सेलेक्ट करा कोई भी फैमिली, तो देखिए दोनों फैमिली में एक चीज तो कॉमन है, क्या कि दोनों में फ्लावर आएंगे अगर एंजियोस्पर्म की फैमिली है तो, ठीक है. तो कुछ कैरेक्टर सिमिलर होंगे, कुछ बिल्कुल कंट्रास्टिंग होंगे, कुछ बिल्कुल डिफरेंट होंगे, या कुछ एफिनिटीज होंगी, उनके बीच में कोई रिलेशन होगा. तो इन सारी चीजों को जो है प्लॉट किया जाता है. डिफरेंसेस बिटवीन द कैरेक्टर, सिमिलैरिटीज बिटवीन द कैरेक्टर, एफिनिटीज बिटवीन द कैरेक्टर्स, और इनको एक्सप्रेस किया जाता है, फिर एक्सप्रेस्ड बाय मैथमेटिक्स और कंप्यूटर, या तो कोई ग्राफ बना के या कोई टेबल बनाकर, ठीक है. मान लीजिए कैरेक्टर्स डिफरेंशिएट किए, फर्स्ट फैमिली, सेकंड फैमिली, यहाँ आपने लिखा कैरेक्टर 1, कैरेक्टर 2, ये इसमें प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट नहीं है, ये इसमें प्रेजेंट नहीं है, ये इसमें प्रेजेंट है. टेबल बना दी, या आपने कोई जो है मैट्रिक्स बना दी, या कोई ग्राफ बना दिया सर्कल के अकॉर्डिंग, इतने परसेंट में ये चीज है, इतने में नहीं है, ठीक है. इसमें कंप्यूटर की भी हेल्प ली जा सकती है आजकल, क्योंकि मैट्रिक्स या टेबल सब कुछ एक्सेल में बनाए जा सकते हैं. तो यूजिंग मैथ और कंप्यूटर दैट दोज रिजल्ट्स कैन बी प्लॉटेड. टेबुलेटेड फॉर्म में, मैट्रिक्स फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में कैटलॉग बनाया जा सकता है उनका, ठीक है, उनकी मैट्रिक्स बनाई जा सकती है. सो रिजल्ट्स को इस तरह से प्लॉट करना, ये क्या है, ऑपरेशनल टैक्सोनॉमिक यूनिट का जो रिजल्ट थे जितने भी, उनको ऐसे प्लॉट करना, ये टैक्सीमेट्रिक्स कहलाता है. दोनों तरह के कैरेक्टर चूज किए जाते हैं. जितने ज्यादा कैरेक्टर्स चूज किए जाएंगे उतना ही अच्छा होगा क्लासिफिकेशन सिस्टम. मोर कैरेक्टर्स, मोर इंफॉर्मेशन, easy will be the classification.
सो जनरली ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है जो टैक्सी मैट्रिक्स में किया जाता है। बेसिक बात यही है कि एक ओटीयू आप सेलेक्ट करें, उसके मैक्सिमम पॉसिबल कैरेक्टर देते रहें, वही उनका न्यूमेरिकल एनालिसिस है। उन न्यूमेरिकल एनालिसिस का मतलब उनको आपने प्लॉट किया है यूजिंग मैथमेटिक्स कि वो जो भी कैरेक्टर थे उन सब की लिस्टिंग कर दी गई है। कुछ कैरेक्टर्स अगर ओवरलैप करते हैं, मान लीजिए एक फैमिली के आपने 10 कैरेक्टर दे दिए, फैमिली ए के 10 कैरेक्टर दिए हैं, फैमिली बी के आपने 8 कैरेक्टर्स दिए हैं, 4 कैरेक्टर्स अगर ओवरलैप करते भी हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिमिलर फैमिलीज में उनको रख दिया जाएगा, दोनों फैमिलीज को एक ही मान लिया जाएगा, फिर कुछ डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए किसी फैमिली में कोई एक कैरेक्टर ऐसा निकल के आया अलग जो उस फैमिली के लिए यूनिक फीचर है, ठीक है, तो उसका आइडेंटिफिकेशन पॉइंट उसी को बना दिया जाएगा मेनली। हम कहेंगे कि यस ए और बी में मैक्सिमम सिमिलैरिटीज तो थे, बट ये पर्टिकुलर कैरेक्टर होने की वजह से ए फैमिली अलग ऑर्डर में जाएगी, बी फैमिली अलग ऑर्डर में जाएगी। तो यहाँ कैरेक्टर्स को ऑल्दो हम कहते तो हैं कि वेटेज इक्वल दिया जाएगा, बट स्टिल डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव किया जा सकता है, ठीक है, वाइल चूजिंग दी कैरेक्टर, बट एट दी लेटर स्टेज केवल कब किया जा सकता है, जब बहुत सारा ओवरलैपिंग है दो फैमिलीज के बीच में। आप लिखते ही गए, कैरेक्टर्स लिखते ही गए, मैक्सिमम कैरेक्टर सिमिलर आते गए, बट स्टिल हम फाइंड आउट करते रहे क्या कोई ऐसा यूनिक फीचर मिल जाए जिसकी वजह से हम इसको डिफरेंशिएट कर पाए दोनों फैमिलीज को। तो ये अच्छी बात है, जितने ज्यादा कैरेक्टर पता चलते हैं उतना ही बेटर नॉलेज आती है, उतनी बेटर इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें। इसीलिए टैक्सी मैट्रिक्स जो एक अच्छा क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ऑल्दो मॉडर्न टूल है, बट अडॉप्ट जो है वो कम किया गया है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपका फाइलोजेनेटिक वे है उसमें ये फेल रहता है, फाइलोजेनी को कम स्टडी करता है फिनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, और आजकल के जितने भी क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो मेनली फाइलोजेनी से लिंक्ड होते हैं, इसीलिए ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है। अदरवाइज दिस इज अ वेरी गुड क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड वेरी इजी टू हैंडल, ठीक है, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, मैथमेटिक्स की नॉलेज चाहिए और हैंडलिंग जो है इसकी बहुत ईजी है। अगर किसी को नहीं भी पता फ्लावर के कैरेक्टर्स क्या है, बायोलॉजी की बहुत ज्यादा एडवांस नॉलेज है भी नहीं फैमिलीज के बारे में, फिर भी अगर उनको कैरेक्टर्स की लिस्टिंग दे दी गई है तो मैथमेटिकली उनको अरेंज कर सकते हैं दोनों फैमिलीज को विद द हेल्प ऑफ टैक्सी मैट्रिक्स। सो आई विल डिस्कस सम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द टैक्सी मैट्रिक्स नाउ। Okay, so now talk about the advantages of the numerical taxonomy. See, all of the classification system in the angiosperms are mainly based upon the characters of flowers. क्लासिफिकेशन जो मेनली किया जाता है वो या तो फ्लावर के फीचर्स के अकॉर्डिंग किया जाता है, ठीक है, या मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स देखते हैं, तो वहां क्लासिफिकेशन सिस्टम मेनली एंजियोस्पर्म के साथ ही डील करते हैं। बट जो फिनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है इसके थ्रू हम इवन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के भी कैरेक्टर लिस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है, केवल मॉर्फोलॉजिकल डाटा तक ही लिमिटेड नहीं है ये, नॉट ओनली द फ्लावरिंग प्लांट्स बट दिस इज आल्सो यूजफुल इन क्लासिफाइंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इट इज यूजफुल इन classifying other divisions of plant, not the angiosperm. Generally, natural system of classification, artificial, Bentham and Hooker, phylogenetic, all they give information about the angiosperm or the flowering plants. But this classification system is also useful in classifying the other divisions of plants as well, the microorganisms. The maximum possible characters can also be listed of the microorganisms. Microorganisms के भी हम maximum possible character लिख सकते हैं, फिर उनको कंपेयर करके सिमिलरिटीज या एफिनिटीज को एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हम प्लॉट कर सकते हैं। इसीलिए जो है ये हेल्पफुल है किसके लिए, जो है आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए। कैरेक्टर रिजेम्बलेंस देखी जाती है कि कितने कैरेक्टर रिजेंबल कर रहे हैं किसी भी बैक्टीरिया के। So this is one advantage of the taximetrics or the numerical taxonomy. The data can be verified. जितना भी डाटा प्लॉट किया गया है वो वेरीफाई किया जा सकता है एक्यूरेटली, क्योंकि उसके लिए डाटा अवेलेबल है ऑलरेडी। हमने जितना भी डाटा उसको प्रेजेंट किया था मैथमेटिक्स की हेल्प से या कंप्यूटर्स की हेल्प से, ठीक है, तो मान लीजिए कंप्यूटर की बात करें, जैसे एक्सेल में डाटा प्लॉटेड है तो उसको वेरीफाई और चेक किया जा सकता है इजीली, बिकॉज वी हैव अरेंज देम यूजिंग मैथमेटिक्स और दी कंप्यूटर्स। अगर किसी ग्राफ के फॉर्म में भी हमने प्लॉट किया है तो उस ग्राफ में वेरिएशन देख के जो है डाटा को हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि क्या हमारा डाटा एक्यूरेट है या करेक्ट है, ठीक है। तो मतलब कहने का है कि इजी है, कन्वीनियंट है हैंडल करने के लिए, इजी टू हैंडल है। मान लीजिए फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम डिस्कस कर रहे थे, कहीं कोई जो है एक्यूरेसी नहीं आ रही या कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी एंसेस्टर में, तो डीप नॉलेज चाहिए बायोलॉजी की, तभी वो बता पाएंगे कि हाँ ये जो प्लांट है कि ये उससे एंसेस्टर है या नहीं, उसका एंसेस्टर या उससे इवॉल्व हुआ है या नहीं।
तो उसके लिए एक हाँ जो है एक्सपर्ट पर्सन चाहिए बायोलॉजी के, या ऐसा कुछ नहीं है, इजी टू हैंडल है, लेस वर्कर्स चाहिए, लेस स्किल्स चाहिए. So these classification system can be handled easily. So this is also an advantage. यहाँ हालांकि थोड़े से डिसएडवांटेज भी हैं, ठीक है, जैसे कि इवोल्यूशन या फाइलोजेनेटिक स्टडीज पर ये कम बेस है, वो हम डिसएडवांटेज में हम डिस्कस करेंगे. इसके अलावा ये जो होता है बेटर सिलेक्शन दिखाता है, बेटर सिलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, क्योंकि यहाँ कैरेक्टर्स रैंडम चूज किए जा सकते हैं, बिकॉज रैंडम कैरेक्टर्स आर चूजन. मान लीजिए कोई नहीं एनलिस्ट कर पाता ऐसे कैरेक्टर जो बहुत डीप नॉलेज चाहिए जिनकी, जैसे कि मॉलिक्यूलर, मान लीजिए डीएनए है या क्रोमोसोम्स है, ठीक है, या सेल का कोई स्ट्रक्चर है, अगर वो भी लिस्टिंग नहीं हो पा रहे हैं तो बेसिक जो अवेलेबल कैरेक्टर हैं जितने भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, एटलीस्ट उनके बेसिस पर जो है क्लासिफिकेशन किया जा सकता है. तो इसमें सिलेक्शन ऑफ कैरेक्टर जो है वो मोर एंड मोर है. आप मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर स्टडी करें, फ्लावरिंग कैरेक्टर स्टडी करें, किसी भी तरह के कैरेक्टर स्टडी करें, वेजिटेटिव कैरेक्टर चाहे स्टडी करें, दो चीजों को कंपेयर करने के लिए, चाहे दो स्पीसीज, चाहे दो जीनस, चाहे दो फैमिली, जो भी है उसको ओटीयू हम कहेंगे. तो हर एक ओटीयू के लिए जो सिलेक्शन जो होता है कैरेक्टर्स का वो बेटर होता है इसमें, बिकॉज आप रैंडमली कितने भी कैरेक्टर जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं. जितने ज्यादा कैरेक्टर होंगे उतना ही अच्छा होता है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एडमसोनियन. एडमसोनियन के जो प्रिंसिपल्स थे उसमें यही कहा गया है, जितने ज्यादा कैरेक्टर होंगे उतना बढ़िया होगा क्लासिफिकेशन सिस्टम. ये एनहेंस करता है डाटा को, एनहेंस द अवेलेबल डाटा अबाउट एनी टैक्सॉन. देखिए किसी भी टैक्सॉन के मैक्सिमम पॉसिबल कैरेक्टर्स इसके अंदर अवेलेबल है. मान लीजिए दो स्पीसीज थी 1 एंड 2, इनको केवल फाइलोजेनी के बेसिस पर अगर सेपरेट कर दिया जाता तो हो सकता था बाकी कैरेक्टर स्टडी नहीं किए जाते. फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में बाकी कैरेक्टर स्टडी नहीं किए जाते, इसीलिए जो है मैक्सिमम कैरेक्टर्स इग्नोर हो जाते हैं. बट यहाँ पर एनहेंस होता है डाटा का जो बैंक है, किसी भी स्पीसीज के बारे में या फैमिली के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो एनहेंस होती है, ज्यादा से ज्यादा कैरेक्टर हम क्योंकि स्टडी कर चुके हैं. तो ये भी एक जो है एडवांटेज है किसका, फिनेटिक्स का. चलिए कुछ डिसएडवांटेज और डिस्कस करते हैं. देखिए मेन डिसएडवांटेज तो यही है कि ये केवल फिनेटिक जो कैरेक्टर्स हैं उस पर बेस है, नेचुरल या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पर बेस है, केवल एक फाइलोजेनेटिक जो कैरेक्टर्स हैं उनकी डीप नॉलेज नहीं देता. ठीक है, फाइलोजेनेटिक स्टडीज या एवोल्यूशन का जो है डिटेल्ड नॉलेज नहीं मिलता इसमें. तो कहीं ना कहीं ये एक ड्रॉबैक है. ठीक है, so there is no viable means to distinction between the stable genetic character and the ecological variation. बहुत ज्यादा डिटेल्ड नॉलेज प्रोवाइड नहीं कर पाता फाइलोजेनेटिक के बारे में, इसीलिए फाइलोजेनेटिक सिस्टम के बजाय ये थोड़े से लैक बिहाइंड, पीछे रह जाते हैं. तो दिस इज द मेन ड्रॉबैक. अदरवाइज इसके अलावा जो है कुछ और ड्रॉबैक हैं, जैसे कि जो आपका फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो पूरी हिस्ट्री बताते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की. यहाँ केवल पॉसिबल कैरेक्टर्स हम लिस्टिंग करते हैं. तो जो कैरेक्टर्स होते हैं वो केवल किसी के एक्सपीरियंस पर बेस हैं. कैरेक्टर्स दैट आर चूजन आर बेस्ड अपॉन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस. जो भी उन कैरेक्टर्स को चूज कर रहा है किसी भी ऑपरेशनल टैक्सोनॉमिक यूनिट के लिए, उसके नॉलेज और एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है कि वो कितने कैरेक्टर चूज कर पाता है. कभी कभी बहुत सटीक रिजल्ट नहीं मिलते, एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलते, क्योंकि मेनली मैंने कहा एक्सपीरियंस और नॉलेज पर ही बेस है. तो बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट जो होते हैं कंपेयरिंग की वो नहीं आ पाते. किसी के पॉसिबल कैरेक्टर्स मान लीजिए इस फैमिली के आपने कर दिए 10 to 12, इसके लिए आप 2 या 4 ही चूज कर पाए, तो एक सर्टेन क्राइटेरिया फिक्स नहीं होता जिसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया जाए. तो इसीलिए एक्यूरेसी कम है. ऑल्दो नंबर बहुत ज्यादा होता है, इंफॉर्मेशन भी ज्यादा होती है, बट एक्यूरेसी कम होती है किसमें, फिनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम में. सो दीज आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम, दैट समहाउ इट इज नॉट एक्यूरेट. कुछ पॉसिबल कैरेक्टर्स जो दिए गए हैं वो कंपैरिजन के लिए जो है इनएडिक्वेट है. हम बेटरली जो है सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स नहीं आते कि इन पर्टिकुलर कैरेक्टर्स पर ही हम क्या करें, क्लासिफिकेशन सिस्टम को बेस रखें, जैसा कि फाइलोजेनेटिक में था. जैसे वहां फाइलोजेनी एक्यूरेट होनी चाहिए, किस एंसेस्टर से कौन सा जो है वो इवॉल्व हुआ है. इस तरह से न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी जो है दैट इज कंसीडर्ड एज द एडिशनल एट्रीब्यूट टू द टैक्सोनॉमी. इट इज एन एडिशनल एट्रीब्यूट to the taxonomy. So till now it is not the main base of system of classification, but still it is an additional attribute to the taxonomy which is a modern trend in taxonomy.
Summarizing the things, it is the use of modern tools like computer, like mathematics in the taxonomy. Mathematics should also be considered as a modern tool, because earlier the numerical analysis, upon the numerical analysis the taxonomy was not based. Morphological characters पर जरूर बेस होते थे, but numerical numbers पर बेस नहीं थी. इसका एक एक्सेप्शन है जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था लिनस का. हालांकि उसमें नंबर्स को यूज किया गया था, तो वो भी एक तरह का टैक्सीमेट्रिक्स था. एक नंबर है तो यूनिस्टेमिनेट, दो स्टेमन है तो बाइस्टेमिनेट. तो इस तरह से जब नंबर्स का यूज किया जाता है, दैट इज टैक्सीमेट्रिक्स. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ गुड टाइम.